लास्ट पीरियड के टॉपिक बेटा क्लियर हो गया था अनन्या? यस सर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. Energy stored in capacitor. साक्षी, प्रतीक, लास्ट टॉपिक was clear. Ariva, energy stored in capacitor. Now should I tell it again? Ariva. Tell it once again. Okay. So energy stored in capacitor. So when you charge a capacitor, work done in charging of a capacitor stores in form of potential energy. Potential energy, that means later on you can use it. This can be converting into the kinetic. तो मान लीजिए कि let charge of the capacitor is increased from 0 to Q by giving small charges dq. तो मान लीजिए कि that this is the capacitor and these are the two plates, and when you say that you are giving the charge, so you see one plate is positive, another plate is negative. एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप बेसिकली करते क्या हो, किसी एक प्लेट से पॉजिटिव dq रिमूव करते हो, एक प्लेट से पॉजिटिव dq रिमूव करते हो और सेकंड प्लेट पर तो यहां से प्लस dq रिमूव करा और इसमें से लेकर इसे पहुंचा दिया. अब पॉजिटिव एक प्लेट पर कम होता जाएगा, तो जिस प्लेट पर पॉजिटिव कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, उस जगह पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. तो दिस विल बी गिविंग, यहां से इसने क्या करा, dq क्या करा, रिलीज कर दिया और dq यहां पहुंच गया, तो इस पर पॉजिटिव इंक्रीज होता जाएगा और क्योंकि ये पॉजिटिव रिलीज कर रहा है इसीलिए इस पर नेगेटिव. तो बेसिकली हम कभी कभार कैपेसिटर के चार्जिंग को कुछ ऐसे भी समझते हैं कि वन प्लेट इज लूजिंग एंड अनदर प्लेट इज गेनिंग. ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, dw इक्वल टू v इंटू dq. अब v की इक्वेशन होती है, सो dw कैन बी टेकन एज 1 अपॉन c q dq. इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेके q के बीच में, तो w इक्वल टू 1 अपॉन c, दिस इज q स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके q तक वेरी करेगा. इसी वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे. दिस इज q स्क्वायर माइनस 0, तो u इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2c. ठीक, सिंस q इक्वल टू cv, so u equal to 1 upon 2 cv square, and also c can be taken as q upon v. तो अगर मैं c को q upon v लगा दूंगा, then u will be equal to 1 upon 2 qv.
These are the three equations of the energy stored in capacitor. You used to write it down. अगर लास्ट पीरियड में नोट नहीं कर पाए तो आप नोट कर लीजिए. दिस इज पेज नंबर 1 ऑफ द पीरियड नंबर 6. प्लीज राइट डाउन. एंड इफ एनीवन इज हैविंग द डाउट देन प्लीज डिस्कस. प्रतीक पांडे ने 2-3 क्वेश्चन भेजे हैं. दोस वी विल बी डिस्कसिंग इन द लास्ट 15 मिनट्स ऑफ द क्लास. ओके. So work done in charging a capacitor is stored in the form of the potential energy. Is this clear to all? Yes, sir. नोट कर लीजिए. Done. This get stored. ये गलती से ऊपर लिखा था. This is energy. Please make a correction. This work done is stored in the form of the potential energy. All of you have noted down? No, sir. नोट कर लीजिए. नोट कर लीजिए. Done? Yes, sir. Okay. Now this is the energy stored in the capacitor. अब इससे बनता है एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी of field inside the capacitor. Energy density means energy is stored in per unit volume of space between the capacitor, space in the capacitor. देखो ये जो एनर्जी स्टोर है ना, दिस इज इन द मीडियम और इन द फ्री स्पेस. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, एनर्जी उसमें स्टोर है. तो हम बात कर रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम. इफ यू सी अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अ पीपीसी,
A PPC means that there are the two sheets. One sheet is this, another sheet is this. These are the two sheets. And if you see, this is the distance between these two. So this is like in a cubite. The distance between the sheets is D and the plate area is A. So the volume of this cubite A into D. This is the volume of the parallel plate capacitor. Volume of PPC equal to A into D. A is area of sheets and D is the distance between the plates. Up now you see, energy is stored, that is equal to work done. This is U equal to 1 upon 2 CV square. Here C is taken as A epsilon naught upon D for a PPC. This is the formula. And V equal to E into D. E is the strength of the electric field and D is the distance. So U can be taken as 1 upon 2 A epsilon naught upon D into E. V का स्क्वायर है तो V square into D square. 1 is cancelled. This can be taken as 1 upon 2 epsilon naught into E square into A into D. Now you can see this is the energy and this A into D is nothing else. This is the volume of the PPC. Am I clear in my words? Am I clear in my words? ये बात समझ में आ गई तो चलो आवाज ये बात क्लियर हुई बेटा साक्षी सूर्यांश अगर मैं इससे एनर्जी डेंसिटी बनाऊंगा नाउ द एनर्जी डेंसिटी always remember energy density symbol is small u so small u equal to total energy stored upon per unit volume. This is the volume. So U can be taken as 1 upon 2 epsilon naught into E square into A into D and the volume of the PPC is given by A into D. So this is cancelled. So energy density is given by this equation. Am I clear? Is this clear? Please write down this much. This is the energy stored in the capacitor. Done. Is this clear to all? समझ में आ गया सबके? हर्षिता, साक्षी, फवाज, अनीबा, प्रतीक, सूर्यांश, अनन्या, अरीबा.
Done. Noted. Yes, sir. Yes. So this is the energy speech pattern. Done. No, sir. नोट कर लीजिए. If you have done it, then we start. And tomorrow, before we starting the numerical, I give the complete summary of the chapter. So this is the series combination of the capacitors. May I start? Yes, sir. Let three capacitors of the capacitance C1, C2 and C3 are connected in series. Series means a single line. So you can see that this is the first capacitor. These are the two plates of the first capacitor. One is given positive charge. Then by the method of the induction, the negative will be developing on the inner side of the second plate. और इसके आउटर में जो पॉजिटिव आता है उसको मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया कहां पर, on the second plate, first plate of the second capacitor. It means whatever the charge plus Q is here, that was the charge plus Q is here. Now you see this is the second plate of the capacitor. By the method of induction, it will be acquiring the negative and the positive will be developing on the outer, and that positive is given. Got it? So by the method of the induction, the negative will be developing here, and this outer surface is connected to the ground. You can see here the capacitance is C1, here the capacitance is C2, here the capacitance is C3. Clear? So first plate of the second capacitor, first plate of second capacitor is connected to outer surface of second plate of first capacitor. In this way, all the capacitors are connected with opposite polarities.
So you can see this is the negative, this is the positive, this is the negative, this is the positive, alternatively लगे हैं, and that's why this is known as the series. अगर कभी भी अपोजिट पोलैरिटी कनेक्टेड मिलेंगे तो वो कहलाएगा सीरीज. Got it? So this is series. Hence it is known as series combination. ये series combination. And in this condition, charge on each capacitor is same. All the capacitor will remain same. सारे कैपेसिटर पर चार्ज का सेम रहेगा, and potential will be vary, and potential will change, will be different. So let the potentials are मान लीजिए पोटेंशियल्स जो हैं वो V1, V2 and V3. So V1 equal to Q upon C1, V2 equal to Q upon C2, and V3 equal to Q upon C3. Now the total voltage V can be taken as V1 plus V2 plus V3. So V is, apply कर दो, Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. Q is taken as common, to V upon Q equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. इसे लिखूंगा मैं 1 upon C. So this is the formula for the series combination of the capacitor. Is this clear to all? Is this clear to all? नोट करना चाहेंगे? नोट करेंगे इसे, जल्दी से नोट कर लीजिए, because then after only the one topic is left, parallel combination. और प्रतीक के क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक बार उन पर बात करते हैं. नोटेड? नेक्स्ट पेज पे चलो बच्चों. Yes, sir.
डन। Yes, sir. ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन। देखो प्रतीक का एक क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन लेता हूँ पहले जल्दी से। नंबर 2 पैरेलल। You see parallel combination. Here all the capacitor will be connected with the same polarity. Suppose the charge is given from here. So charge will be dividing. This is the charge Q1. This is the charge Q2. This is the charge Q3. C1, C2, C3 are the capacitance. So total charge can be taken as Q1 plus Q2 plus Q3 because of the conservation of charge. ठीक है, अब अगर चार्ज किन्हीं दो पॉइंट के बीच में मूव करेगा तो दोस पॉइंट विल बी ऑलवेज रिमेनिंग सेम। इन दिस कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस will be constant. Potential difference will be constant. So Q1 will be taken as C1V, Q2 will be taken as C2V, and Q3 will be taken as C3V. तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 plus Q2 plus Q3. When you put the value, then they take V as common. Q upon V can be taken as here. This is C1 plus C2 plus C3. This will be taken as C. So in the parallel combination, the capacitance formula is C1 plus C2 plus C3. Is this clear? आप जल्दी से इसे नोट करो क्योंकि मुझे इस बालक के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। एंड टुमारो मॉर्निंग वी डिस्कस नंबर 1 द समरी ऑफ द चैप्टर एंड देन द न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दिस टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी। इज दिस क्लियर टू ऑल? प्रतीक, बात समझ में आई? अभिनव पांडे, अनन्या, Yes, sir. हर्षिता, Yes. साक्षी, सूर्यांश। Yes, sir. डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। सबने नोट कर लिया बच्चों? देखो इन्होंने क्वेश्चन भेजा है, मैं ये क्वेश्चन अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इन्होंने कहा है अ चार्ज q is uniformly distributed within the material of a hollow sphere of the inner radii r1 and outer radii r2 as shown in the figure। जो फिगर दे रखी है बच्चों वो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। आप मान के चल सकते हो इसके अंदर ये कैविटी है जिसकी आउटर रेडियस r1 सॉरी इनर रेडियस r1 आउटर रेडियस इस मटेरियल की r2। ये यहाँ पर पूरा सॉलिड है और जो चार्ज दिया गया है ना सर वो इसी मटेरियल में दिया गया है।
अब इन्होंने हमें मटेरियल का नेचर नहीं बताया है, तो हम इसे इंसुलेटिंग मान कर सकते हैं। और क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये इन्होंने डायग्राम दे रखा है। ये कहते हैं इसके सेंटर पे हमने चार्ज रखा Q और डिमांड है किसी एक पॉइंट P पर, ये पॉइंट P है, यहां पर जिसकी डिस्टेंस x है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। देखो ये गॉस लॉ की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट P पर एक गॉसन सरफेस बनाएंगे। अब अगर आप गौर से देखो तो चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट है यहां से लेके यहां तक। इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा ना, वो सर यहां से लेके यहां तक आएगा, इतने पोर्शन। तो पहले काम करो, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। Sir, volume charge density means the charge on per unit volume. And this is a hollow sphere, so 4 upon 3 pi. This will be R2Q minus R1Q. Got it? Chuli. This is the Yes, volume sir. charge density. Now calculate charge enclosed in Gaussian surface. अब गॉसन सरफेस में जो चार्ज इनक्लोज्ड है उसको कैलकुलेट करो। तो गॉसन सरफेस तो ये रही सर, तो QE लिख दिया मैंने इसे। दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गॉसन सरफेस। ये ठीक है। तो QE इक्वल टू, Yes. दिस इज Q अपॉन 4 अपॉन 3 पाई, ये हो जाएगा R2Q माइनस R1Q इनटू, जरा गौर से देखना, इस वॉल्यूम में ना केवल इतना वाला पार्ट आएगा सर। तो दिस इज 4 अपॉन 3 पाई एक्स क्यूब माइनस R1Q। 4 अपॉन 3 पाई कैंसिल, तो चार्ज इनक्लोज हो गया Q, और इसे मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब माइनस R1Q अपॉन R2Q माइनस R1Q। Got it? Now using Gauss law, अब अगर मैं गॉस लॉ यूज करता हूं तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDA इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज E क्लोज इंटीग्रल ऑफ DA इक्वल टू, आप कर लेंगे बेटा, QE की वैल्यू क्या आ गई? द वैल्यू ऑफ द Q इज दिस, Q अपॉन QX क्यूब माइनस R1Q अपॉन R2Q माइनस R1Q। ठीक, इज दिस क्लियर? इसका जो सरफेस एरिया आएगा दिस इज Yes. 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। क्यों भी ठीक है? तो E का वैल्यू हो जाएगा, अच्छा इसमें से मेरे से गड़बड़ हुई है कि एप्सिलॉन नॉट गायब हो गया। एप्सिलॉन नॉट इज हियर ओनली, सो दिस इज Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एक्स क्यूब माइनस R1Q अपॉन R2Q माइनस R1Q, और जो वेरिएबिलिटी है सर वो आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर से। तो ये ठीक है, कर लेंगे इसको। क्यों बेटा? Yes, sir. हो जाएगा। उसके बाद में उन्होंने कहा है शो द ग्राफ एज ए फंक्शन ऑफ x फॉर x ग्रेटर देन 0 लेसर देन 2R2 है ना। अगर मैं यहां पर जरा गौर से देखो, इस मटेरियल की बात करूं तो इस मटेरियल में यहां पर ये चार्ज है, एक्चुअल में हुआ क्या होगा, -Q चार्ज यहां आ जाएगा और +Q चार्ज यहां जाएगा। यानी कि इतने स्पेस में R1 तक के स्पेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, यहां पर डिस्टेंस, यहां पर फील्ड,
और अगर मैं इसके वेरिएशन को दिखाऊं तो R1 ये जो है x लेसर देन R1, इस सारी कंडीशन में E0 रहेगा। क्लियर, गॉट इट। उसके बाद में फर्स्ट फील्ड जो मिलेगा मुझे, वो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू को चेंज कर दूं, जरा गौर से देखो, अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं R1 पुट कर दूं दोनों जगहों पर, देख लीजिए फील्ड 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन R1 होगी तो आप देख सकते हो यहां से और यहां से फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। गॉट इट, क्लियर। अगर मैं x की वैल्यू R2 पुट कर दूं तो x की वैल्यू R2 पुट करूंगा तो अब क्या होगा, फील्ड डिक्रीज होगा। गॉट इट, क्लियर। इसमें कोई डाउट क्यों भाई? सर क्लियर। ठीक है, देन आफ्टर आपका एक और क्वेश्चन है इसमें। सर इसमें जो आंसर है उसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर दे रखा है अपॉन में, एक्स स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर नहीं दे रखा है। ये एक मिनट, क्योंकि ऐसा होगा, ये जो ये सरफेस एरिया लगेगा, है ना? यस सर। हाँ, तो सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर लगेगा। सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये ठीक है। क्लियर, ओके सर। क्योंकि आप जब बात करोगे गॉसन सरफेस की ना, तो गॉसन सरफेस में केवल इतना इनक्लोज पार्ट आएगा। ठीक, तो इसका सरफेस एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब उस यस। कंडीशन में आप देख सकते हैं, तो ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन आता है आपका। इन्होंने कहा है शो दैट देयर इज नो नेट चार्ज इन अ रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट ऑल द पॉइंट्स। तो मान लीजिए कि किसी एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फील्ड लाइन के बीच का गैप कांस्टेंट रहेगा। तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। गॉट इट, क्लियर। इट इज यस पॉसिबल सर। for long charge sheets of opposite charge density. Got it? यस सर। So the net charge is 0. Less than a minute है, जल्दी से देखो। So that net charge is 0. Clear? आई बात समझ में बेटा? प्रतीक, प्रतीक, साक्षी, श्रेयांश, अनन्या, हर्षता, अभिनव, ये बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी के लिए